Hinduism, one of the world's oldest religions, is rich in stories of gods and goddesses, each revered for their unique qualities and powers. In Hindu mythology, there is no definitive answer to who the greatest god is, as the religion celebrates a pluralistic approach to divinity. However, three principal deities, Brahma, Vishnu, and Shiva, collectively form the Trimurti, symbolizing creation, preservation, and destruction, respectively. Among them, Vishnu and Shiva hold significant prominence in Hinduism's vast pantheon of gods. Brahman is the creator of the universe and is often depicted with four faces, symbolizing his knowledge and ability to see in all directions. Although crucial to the cycle of existence, Brahma is not as widely worshipped as Vishnu or Shiva, as his role is seen as limited to creation. Vishnu, the preserver, is considered one of the most beloved deities. He is known for his incarnations, or avatars, which include Rama, Krishna, and Narasimha, among others. Each avatar is celebrated for combating evil and restoring Dharma cosmic order. For example, Lord Krishna's role in the Mahabharata, particularly the Bhagavad Gita, presents him as a guide and philosopher who imparts timeless spiritual wisdom. Vishnu's consort, goddess Lakshmi, represents prosperity and abundance, further elevating his stature among devotees. Shiva, the destroyer and transformer, is equally revered for his complex and paradoxical nature. Known as Mahadeva, the great god, he is both ascetic and householder, terrifying and benevolent. He represents the power of destruction that precedes renewal and growth. Shiva is often depicted in deep meditation on Mount Kailash or performing the cosmic dance, Tandava, symbolizing the cycle of creation and destruction. His consort, Parvati, and his sons, Ganesha and Kartikeya, are also highly venerated, making Shiva a central figure in Hindu worship. Other deities like Devi, the mother goddess, in her forms such as Durga, Kali, and Saraswati, and Ganesha, the remover of obstacles, are also celebrated as supreme in specific traditions. In the Shakta tradition, Devi is considered the ultimate reality, while in Vaishnavism, Vishnu is supreme, and in Shaivism, Shiva takes precedence. Hinduism emphasizes the idea of Brahman, the formless, infinite, and eternal ultimate reality that transcends all deities. All gods and goddesses are seen as manifestations of Brahman, allowing devotees to choose their personal path to the divine. Ultimately, the greatest god in Hinduism depends on individual belief and tradition. The religion's inclusivity allows followers to focus on the deity that resonates most deeply with their spiritual journey, reflecting the profound diversity and depth of Hindu philosophy and mythology. दुर्गा देवी की कथा। दुर्गा देवी, जिन्हें आदि शक्ति, शक्ति और माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनका जन्म असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। देवी दुर्गा का वर्णन विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में मिलता है, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णित है। ताराहो, महिषासुर का अत्याचार। महिषासुर एक बलशाली असुर था जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता असहाय होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ओलारियान, देवी दुर्गा का प्रकट होना, देवताओं की प्रार्थना और महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों का समर्पण किया। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ जिसे दुर्गा देवी के नाम से जाना गया। हर देवता ने उन्हें अपनी विशेष शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने अग्निबाण, वायु ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की। देवी दुर्गा का रूप तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। अय्यास, महिषासुर के साथ
युद्ध दुर्गा देवी ने महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। 9 दिनों और 9 रातों तक देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से असुरों की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। महिषासुर ने अपना रूप बदल बदल कर देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन देवी दुर्गा ने हर बार उसकी चाल को विफल कर दिया। अंततः देवी ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस विजय को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तला नवरात्रि का महत्व। देवी दुर्गा की महिमा का स्मरण करने के लिए हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर स्वरूप मानव जीवन के किसी न किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। दुर्गा देवी का संदेश। देवी दुर्गा न केवल शक्ति की प्रतीक है, बल्कि करुणा, प्रेम और धर्म की रक्षा करने वाली भी हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। लनम समाज में महालक्ष्मी की कथा। महालक्ष्मी देवी को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सौभाग्य और वैभव की देवी माना जाता है। उनकी पूजा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। महालक्ष्मी की कथा में उनकी उत्पत्ति, महत्व और उनके भक्तों के प्रति कृपा का सुंदर वर्णन मिलता है। यह कथा विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में विस्तृत रूप से वर्णित है। दायारन रीरेखरिन सृष्टि की उत्पत्ति और समुद्र मंथनमयी। कहते हैं कि प्रारंभ में सृष्टि का निर्माण होने के बाद देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। देवता अपनी शक्तियां खो बैठे थे और असुरों के सामने कमजोर पड़ गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और बताया कि इससे अमृत प्राप्त होगा, जिससे वे फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर मंथन करने लगे। मंथन के दौरान समुद्र से 14 अमूल्य रत्न निकले। इन्हीं में से एक रत्न के रूप में महालक्ष्मी प्रकट हुई। महालक्ष्मी का प्राकट्य। उस महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उनके रूप और सौंदर्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके हाथों में कमल था और वे कमल पर विराजमान थीं। उनका तेजोमय रूप देखकर देवता, असुर और अन्य सभी प्राणियों ने उन्हें नमन किया। महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना और उनके साथ वैकुंठ में निवास करने लगीं। वे भगवान विष्णु की पत्नी और शक्ति बन गईं। महालक्ष्मी का महत्व। महालक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा से मनुष्य को संपन्नता, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन वे केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलते हैं। जो लोग आलसी, अहंकारी और अनुचित कार्य करते हैं, उनसे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अन्य श्री सूक्त की कथा। एक बार महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गईं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया तो वे नाराज होकर छोड़ गईं। उनके चले जाने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। सभी लोग दुखी हो गए और देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे महालक्ष्मी को वापस बुलाएं। भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी स्तुति की। उन्होंने श्री सूक्त का पाठ किया और वचन दिया कि वे हमेशा उन्हें महत्व देंगे। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और वैकुंठ लौट आईं। तब से यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्री सूक्त का पाठ करता है, महालक्ष्मी उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। महालक्ष्मी व्रत और पूजा की कथा। महालक्ष्मी व्रत की एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण स्त्री थी जो बहुत ही धर्मपरायण और सच्चे हृदय वाली थी। वह रोज भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करती थी। एक दिन महालक्ष्मी स्वयं उसके घर आईं और कहा, मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहना चाहती हूँ। ब्राह्मण स्त्री ने महालक्ष्मी का स्वागत किया और उनकी पूरे श्रद्धा से पूजा की। महालक्ष्मी की कृपा से उसका घर धन धान्य से भर गया, लेकिन यह देखकर गांव के अन्य लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने महालक्ष्मी को ब्राह्मण स्त्री के घर से जाने के लिए बाध्य कर दिया। महालक्ष्मी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि वे अपने अहंकार और लोभ को त्यागें, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी।
तब महालक्ष्मी ने गांव छोड़ दिया और उनके जाते ही गांव में गरीबी और दुर्भाग्य ने डेरा डाल दिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण स्त्री से क्षमा मांगी। उन्होंने महालक्ष्मी से प्रार्थना की और उन्हें वापस बुलाया। महालक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गांव में फिर से समृद्धि लाई। शिक्षा। महालक्ष्मी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों पर ही महालक्ष्मी की कृपा होती है। हमें लोभ, अहंकार और अधर्म से दूर रहना चाहिए। महालक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां स्वच्छता, पवित्रता और अच्छे संस्कार होते हैं। महालक्ष्मी का स्मरण करने से न केवल धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में शांति और संतोष भी मिलता है। यही कारण है कि हर दीपावली पर उनकी विशेष पूजा की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में प्रकाश और समृद्धि का वास हो। श्री वेंकटेश्वर बालाजी के अनेक अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं हैं, जिनमें उनकी महिमा और भक्तों पर कृपा का वर्णन मिलता है। यहाँ पर एक शक्तिशाली कथा प्रस्तुत है, जो उनकी भक्ति, दया और चमत्कारों को उजागर करती है। अवमम, श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कथा। त्रेता युग के अंत और कलियुग के प्रारंभ में धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। देवता, अर्षि और मानव सभी असंतोष और पीड़ा में थे। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, इस समस्या को दूर करने के लिए वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतरित हुए। यह पर्वत आज तिरुपति के नाम से जाना जाता है। अलसिया वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतरण। कहानी के अनुसार महर्षि भृगु को एक बार यह भ्रम हुआ कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे अधिक सहनशील और करुणामयी है। इसे समझने के लिए उन्होंने पहले ब्रह्मा और फिर शिव की परीक्षा ली, लेकिन उनकी संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में वे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ गए। वहां पहुंचकर भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर मारा। इस अपमानजनक कृत्य को देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु, जो करुणा और सहनशीलता के प्रतीक हैं, चुपचाप यह सहन कर गए। परंतु देवी लक्ष्मी के बिना उनका जीवन अधूरा हो गया। उन्होंने देवी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वेंकटाद्रि पर्वत का रुख किया और वहां ध्यान में लीन हो गए। इडियाडा। पद्मावती देवी से विवाह। वेंकटाद्रि पर्वत पर रहते हुए भगवान विष्णु ने एक सुंदर राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती राजा अक्षराज की पुत्री थीं। भगवान वेंकटेश्वर ने ब्रह्मा और शिव को अपने विवाह के साक्षी बनाया। विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन इसके लिए भगवान ने कुबेर से धन उधार लिया। ऐसा माना जाता है कि भक्तों द्वारा बालाजी को अर्पित किया गया धन उसी उधार को चुकाने में उपयोग होता है। भक्त का उद्धार। एक बार वेंकटाद्रि पर्वत पर एक निर्धन ब्राह्मण श्रीनिवास भगवान बालाजी के दर्शन के लिए आया। वह अत्यंत गरीब था और जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उसने वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और अपनी सारी समस्याओं को भगवान के समक्ष रखा। भगवान बालाजी ने उसकी सच्ची भक्ति को देखकर उसे दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि वह जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं महसूस करेगा। ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार हुआ और उसकी गरीबी दूर हो गई। यह कथा भगवान वेंकटेश्वर की करुणा और अपने भक्तों पर असीम कृपा को दर्शाती है। अलास्टीन, कालयुग के रक्षक। श्री वेंकटेश्वर बालाजी को कालयुग के भगवान माना जाता है। यह माना जाता है कि कलयुग में जब भी किसी भक्त को सहायता की आवश्यकता होती है, तो भगवान वेंकटेश्वर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित उनका मंदिर दुनिया के सबसे धनी और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी का चमत्कार। तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक विशेष घटना घटित हुई थी। एक भक्त जो अत्यंत समर्पित था ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके परिवार की बीमारी ठीक हो जाए। वह हर दिन मंदिर में जाकर नारियल और तुलसी अर्पित करता था। कुछ महीनों बाद उसके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हो गए। ये घटना तिरुपति बालाजी की कृपा का प्रमाण है। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान किसी भी भक्त की सहायता के लिए सदा तैयार रहते हैं। निष्कर्ष।
श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और समर्पण को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। भक्तों को चाहिए कि वे अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर सदा उनके साथ हैं। यह कथा भगवान वेंकटेश्वर की अपार शक्ति और दया का प्रमाण है और हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है।